सो यहाँ पे अभी हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का नेक्स्ट पोर्शन में आ गए हैं. इन दिस वीडियो टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. वी विल ट्राई टू. Okay, so the topic which we are discussing today over here is called biocontrol agents. Okay, now what is the main thing that we are going to discuss under this topic? The main objective of studying biocontrol agent is that in today's world, in order to meet up with the demands of food by the people, as the population is increasing very rapidly, so the demand of cultivation, the demand of vegetable products, animal products, that has also been increased, okay, along with the increasing population. So आज के दिन का जो cultivators है, they in order to get more product from their farming, they do not apply the biological control methods, rather they would apply some chemical methods like use of insecticides, use of pesticides, even some fruits are being ripened by injecting some chemicals inside those fruit. Carbicide is one of such chemical which is used for the ripening of mangoes. Mangoes is such a favorite fruit of almost all. We all eat mangoes. It's not in. We all love mangoes. So the fruit which is in such a popular demand, what they do to that fruit, they inject some chemical inside that fruit which enhances their ripening method. So these chemicals which has ripened these mangoes, when we eat that mango, that chemical along with the mango will go inside our body and it is going to cause some ulcer, it is going to cause some damage to our gut alimentary canal, is not it? So use of chemicals has to be barred, use of chemicals has to be stopped. And what are the methods that one can apply in order to stop the use of chemicals, okay, and do organic farming? Organic farming is a term which you will be very much well acquainted, okay. These days, in order to restore the natural balance of a fruit or vegetable, organic farming is always preferred, okay, in order to in order to maintain that purity of the vegetable and fruits, okay. So what techniques are applied in organic farming, that is what we are going to study under this topic, okay. So organic farming is a farming which will not use any chemical but rather use some biological agents, some biological organism in order to counteract the problems of pests, okay, as well as no use of chemicals are going to boost the natural preservance of the fruits and vegetables, okay. So that is what we are going to study down here today. Biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plants disease and pests, okay, for controlling any kind of plant related problem or any kind of plant related productivity issue should not occur, okay. For that thing we are using some biological measures, okay. The problems of pests are generally eradicated by the use of chemical insecticides and pesticides, okay. That is what we generally do. We use chemical insecticides and pesticides to get rid of the pests. We don't think about anything else. We think, no, we have cultivated, our crop must survive, none of my crops should get damaged by any pest and insecticide. For that thing I spray just chemicals over my fruits and vegetables, but these things are going to prove toxic for us only, who the buyers are and those who eat those fruits and vegetables. These contain harmful and toxic chemicals which are hazardous for both human beings, other animals, environment, etc. Okay, एक example इसका दे दिया है. Soil gets polluted through the use of weedicides to remove weeds. Now weeds is not ganja only, okay. Weeds is the word which is also used in order to say, suppose you have this much of land, okay, and in this land you have decided कि मैं यहाँ पे सिर्फ भिंडी का पेड़ उगाऊंगा, okay. लेडीज फिंगर जो भी है, सिर्फ उसी का पेड़ में यहाँ पे उगाऊंगा. तो तुमने यहाँ पे क्या किया, पूरा लेडी फिंगर का यहाँ पे तुमने ठीक से भिंडी का यहाँ पे तुमने इस तरीके का प्लांट्स लगाया है, ठीक है, और तुमको यहाँ पे भिंडी उगाना है. इस सॉइल पे तुम क्या कर रहे हो, गोबर डाल रहे हो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नाइट्रोजन लेवल ऑफ द सॉइल, सो दैट प्लांट जल्दी ग्रो करे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्लांट में आए. लेकिन यहाँ पे बोले कुछ घास उग गया, तो वो घास क्या करेगा, जो तुम ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल में डाल रहे हो इन प्लांट्स के लिए, ठीक है, वो घास जो है वो क्या करेगा, उससे कुछ खा लेगा कि नहीं, दैट इज अ लॉस फॉर यू. तो वो जो घास है वो तुम्हारा उस कल्टीवेटेड लैंड में
एक अनवांटेड प्लांट है जो तुम्हारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन से शेयर ले रहा है, तुम्हारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन को कमा रहा है, तो ये प्लांट तुम्हारे लिए अनडिजायरेबल है, घास से तुमको क्या करना है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग वीड्स बुलाएंगे। तो बहुत सारा आजकल कल्टीवेटेड लैंड्स में अननेसेसरी प्लांट्स ना आए, इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, दे स्प्रे अ केमिकल विच इज कॉल्ड एज वीडिसाइड्स, जिसके वजह से राइस पूरा राइस ही होगा, वहां पे कोई घास नहीं होगा या कोई दूसरा प्लांट नहीं होगा टू टेक द न्यूट्रिशन ऑफ द डेजिग्नेटेड प्लांट जो तुमको वहां पे उगाना है, ठीक है ना। तो वो वीडिसाइड्स देंगे तो सॉइल में केमिकल जा रहा है, वो सॉइल को डैमेज करेगा, ठीक है ना, तो सॉइल पोल्यूट होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा। अच्छा, तो अब सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं, वी कैन डू बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस रादर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, सो क्या करते हैं इसमें, देखो, इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रीडेशन रादर देन टू इंट्रोड्यूस केमिकल्स इन द फील्ड। इस डेफिनेशन का सिग्निफिकेंस ये बोल रहा है कि आज हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सब का हम लोग यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का हम लोग यूज करते हैं ना। लेकिन आज से 500 साल पहले जब इंसेक्टिसाइड्स नहीं था, वीडिसाइड्स नहीं था, पेस्टिसाइड्स नहीं था, तब क्या प्लांट का ग्रोथ नहीं होता था, तब क्या वेजिटेबल का ग्रोथ नहीं होता था, फ्रूट्स का ग्रोथ नहीं होता था, तब भी होता था। और तब कैसे वो होता था, कैसे वो बैलेंस में रहता था। अगर तुम्हारा आम का पेड़ है, उस आम का पेड़ का आम को खाने के लिए अगर वहां पे एक पेस्ट है, ठीक है, तो उस पेस्ट को खाने के लिए वहां पे कोई और पेस्ट भी होगा, ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल थोड़ा टाइम पहले मैं तुम लोग को, थोड़ा टाइम बाद में तुम लोग को दूंगा, जैसे कि लेडी बर्ड बोल के एक इंसेक्ट है जिसका जो डोर्सल साइड है उसमें वो पूरा रेड या पिंक टाइप का है और उसमें ब्लैक 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 डॉट है, तुम लोगों ने देखा होगा। लेडी बर्ड बोल के जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, वो खाता है एफिड्स को। एफिड्स को नहीं, वो कुछ दिन पहले हम लोग का लोकास्ट अटैक हुआ था, ठीक है ना। तो लोकास्ट अटैक के जैसा ही एक इंसेक्ट है जो भी एक झुंड में रहता है और एक साथ एक कल्टीवेशन लैंड के ऊपर वो खाना खाने के लिए अटैक करता है, तो लेडी बर्ड उनको खा लेता है। तो आज अगर मैं एक जगह पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा हूं तो मेरा जो एफिड है जो मेरा आम को खराब कर सकता है, वो एफिड भी मर जाएगा और वो लेडी बर्ड भी तो मर जाएगा। तो क्यों ना ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लिटिल बिट इमोशनल, लिटिल बिट मतलब इथिकल टाइप का है, थोड़ा सा मतलब जज्बात है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि नहीं, मैं इंसेक्टिसाइड देके एक तो मेरा कल्टीवेशन भी खराब हो रहा है, उसमें केमिकल्स जा रहा है, लोगों को बैड क्वालिटी का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। ये नहीं करके, इंसेक्टिसाइड से सब यूज नहीं करके, व्हाई डोंट वी डू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग किसी भी इंसेक्ट को नहीं मारेंगे, रादर हम लोग ये नॉलेज गेन करेंगे कि आज अगर मेरे मैंगो ट्री में किसी एफिड ने आके अटैक किया तो इस एफिड का प्रीडेशन कौन करेगा, इस एफिड का प्रीडेशन लेडी बर्ड करेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्लांट्स में लेडी बर्ड को लाके छोड़ देना है। वो लेडी बर्ड एफिड को खा लेगा, लेकिन वो लेडी बर्ड मेरा मैंगो को तो नहीं खाएगा। तो लेडी बर्ड एफिड को खा लेगा, मेरा मैंगो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। उस मैंगो में कोई ना कोई केमिकल गया, वो पूरा नेचुरल रहेगा। दैट इज द आइडिया, समझ में आया ना, दैट इज द आइडिया। तो अब इस आइडिया पे आगे हम लोग नोट्स बनाएंगे, इसका नोट्स बना लो। सो अभी जो तुम लोगों को बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इथिकल है, हम लोग बायोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए फार्मिंग करेंगे विदाउट द यूज ऑफ केमिकल, उसी को यहाँ पे नोट दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव्स दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के पास अपना मेजर्स है खुद के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। नेचर में अपना सल्यूशन है खुद के प्रॉब्लम को खुद ठीक करने के लिए, इसलिए हमारा अर्थ इतना लंबा टाइम तक सरवाइव कर पाया है और उसमें हम ऑर्गेनिजम्स भी कर पाए हैं, ठीक है ना। अच्छा, द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, क्योंकि उसमें तो हम लोग केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। The important part of biological farming approach is to become familiar with the various forms of life that inhabit in the field. आज अगर मैं मैंगो का ट्रीज लगाने वाला हूं तो मुझे जानना पड़ेगा कि मैंगो के ट्रीज में क्या क्या इंसेक्ट्स है, इसका नॉलेज होना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग जस्ट मेरा मन गया मैं शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होगा। इन ऑर्डर टू डू दैट यू विल हैव टू गेन सम नॉलेज बिफोर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। यू विल हैव टू नो कि अगर मैंने एक 1 एकड़ लैंड में अगर मैंने सिर्फ मैंगो ट्रीज ही लगाया तो उस 1 एकड़ लैंड में मैंगो ट्रीज के साथ और कौन सा लिविंग फॉर्म है जो वहां पे आ सकता है,
ठीक है ना, चाहे वो इंसेक्ट हो, दूसरा कोई प्लांट हो, ग्रास हो, जो भी हो, आई विल हैव टू हैव दैट नॉलेज कि उस एरिया में अगर मैंने मैंगो ट्री लगाया तो उसके साथ और कौन कौन सा दूसरा लिविंग स्पीशीज वहां पे आएगा। प्रीडेटर्स एज वेल एज पेस्ट, मैंगो को कौन खराब करेगा और मैंगो को खराब करने वाले को मारेगा कौन, इसका नॉलेज। ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल्स, ठीक है, कि एफिड कितना दिन तक जिंदा रहता है, उसका प्रीडेटर कितना दिन तक जिंदा रहता है। सपोज जो पेस्ट है वो एफिड मैं बोल रहा हूँ, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पेस्ट जो है एफिड, उसका बोला लाइफ साइकिल है 30 दिन का, ठीक है, वो 30 डेज का उसका लाइफ स्पान है। और जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर अगर मुझे कोई डिजायरेबल प्रीडेटर वहां पे लाना है, इसका बोले जो एफिड है उसका बोले 3-4 प्रीडेटर है, और 3-4 प्रीडेटर में मुझे डिजायरेबल प्रीडेटर को लाना है। मेरा डिजायरेबल प्रीडेटर कौन होगा? वही होगा जिसका लाइफ स्पान पेस्ट से ज्यादा है, तो वो अपना एक लाइफ में वो ज्यादा पेस्ट खा के मरेगा, है ना। सपोज जो पेस्ट है एफिड, वो एफिड का लाइफ स्पान है 30 दिन का, प्रीडेटर्स में प्रीफर करूंगा 100 दिन का। तो एक ही लाइफ साइकिल में जो प्रीडेटर है वो क्या करेगा, 3 बार एफिड को खत्म कर सकता है, लाइक दैट। ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल जानना पड़ेगा, पैटर्न्स ऑफ फीडिंग, कौन किसको खाता है, या एक एफिड को कितना टाइप ऑफ इंसेक्ट खा सकता है, द हैबिटेट्स दे प्रीफर, ठीक है। दिस हेल्प्स, ये सब नॉलेज अगर हम लोग ले लें तो दिस हेल्प्स द इराडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट। ये सब अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, एक पेस्ट को दूसरे प्रीडेटर से अगर हम लोग उस पेस्ट को खिलवा देते हैं, सेम फील्ड में उस इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस करके जो इस पेस्ट को खाता है, ठीक है ना, ये सब अगर हम लोग करें तो हम लोग पेस्ट को तो इराडिकेट कर देंगे, ठीक है। द इराडिकेशन ऑफ क्रीचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट इज पॉसिबल बट इज अनडिजायरेबल, ठीक है, बट इज अनडिजायरेबल बिकॉज विदाउट देम, अगर हम लोग केमिकल मार के सब पेस्ट को अगर हम लोग मार देंगे, तो अगर एक फील्ड में पेस्ट नहीं रहा तो विदाउट पेस्ट द बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट, जो इंसेक्ट इस पेस्ट को खाता है, आज अगर हम लोग केमिकल मार के इस पेस्ट को मार देते हैं तो उस फील्ड में क्या ये प्रीडेटर आएगा जो इस पेस्ट को खाता है? उसका खाना तो ये पेस्ट है, तो प्रीडेटर कहां से आएगा इस पेस्ट को खाने के लिए? तो अगर हम लोग केमिकल मार के पेस्ट को मार देते हैं तो उसके साथ साथ हम लोग प्रीडेटर को भी मार रहे हैं, ठीक है। सो ये वही लिखा है कि इराडिकेशन ऑफ क्रिएचर्स दैट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेस्ट, जिसको हम लोग पेस्ट बोलते हैं, उसको इराडिकेट कर देना तो इजी है केमिकल मार के, बट इज अनडिजायरेबल। बट एक ऑर्गेनिक फार्मर ये नहीं करेगा, बिकॉज विदाउट द पेस्ट, ठीक है, द बेनिफिशियल प्रीडेटरी एंड पैरासाइटिक इंसेक्ट व्हिच डिपेंड अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ना हमारा एफिड जिंदा रहेगा, ना एफिड को खाने वाला लेडी बर्ड जिंदा रहेगा, ठीक है ना। उनका भी इकोसिस्टम में रहना इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी एक इंपॉर्टेंट, एक वाइटल फूड चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। वी कैनॉट जस्ट स्प्रे केमिकल एंड डिस्टर्ब द फूड चेन, दैट इज व्हाट द इथिकल मेजर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज, दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक फार्मर बिलीव्स, कि मैं केमिकल का यूज नहीं करूंगा लेकिन बायोलॉजिकल बैलेंस को बनाते हुए मैं अपना फार्मिंग करते जाऊंगा। एग्जाम्पल एक दे दिया, वही लेडी बर्ड, अ बीटल विद अ रेड ब्लैक मार्किंग्स, सबको पता है ड्राइंग क्या ही होगा छोटा में, इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग एफिड्स। रिलेटेबल एग्जाम्पल है इसलिए दे दिया, ठीक है। अभी और भी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे बायो कंट्रोल मेजर्स का, इसका नोट बनाओ। यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बायो कंट्रोल एजेंट्स। एक एग्जाम्पल वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया लेडी बर्ड का। सेकेंड एग्जाम्पल बायो कंट्रोल मेथड्स, ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटोस। क्यों? क्योंकि ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो का लार्वा खा लेता है, ठीक है। तो अगर ड्रैगन फ्लाई जहाँ पे ज्यादा रहेगा वहाँ पे मॉस्किटोस कम होगा, क्योंकि उसका ब्रीडिंग में ये इंटरफियर करता है, ये मॉस्किटो का लार्वा के ऊपर फीड करता है। तो दिस इंसेक्ट इज रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ऑफ अनदर इंसेक्ट, एंड एक ऐसा इंसेक्ट का, मॉस्किटो का, जो हमारे लिए कितना हार्मफुल और कितना वेक्टर टाइप का एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में दूसरा पैथोजेंस को लाके छोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या खास है इस बैक्टीरिया का कि कैसे ये बैक्टीरिया हम लोग को बायो कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये एक माइक्रोबियल बायोलॉजिकल एजेंट है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोबियल बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज लिविंग एंड अ लिविंग सोर्स ऑफ हेल्प, ठीक है। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को मार्केट्स में पैकेट में बेचा जाता है, और उस पैकेट में ये बैक्टीरिया का कॉलोनी जो है वो छोटा छोटा स्पोर के तरीके से रहता है। स्पोर आई होप तुम लोगों ने फ्लावर्स में देखा ही होगा, तो छोटा छोटा दाना दाना स्पोर के जैसा पाया जाता है पैकेट्स में। उसको लाके पानी के साथ मिक्स करना है, देखिए बैक्टीरिया पूरा पानी में चला जाएगा, फिर उस पानी को अपने प्लांट्स में
स्प्रे करना है। उस पानी को जब तुम प्लांट में स्प्रे करोगे तो तुम्हारे प्लांट में थोड़ा सा सेरिकल्चर का वीडियो से रिलेट करते हैं। जैसे कि सेरिकल्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो मॉथ होता है और बटरफ्लाई होता है, उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, है ना। तो वो लार्वल स्टेज जब आता है, वो लार्वा क्या करता है, प्लांट का लीव्स खा लेता है। और अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें लीव्स है कम और उसका लीव्स बोले कैटरपिलर खा लिया, तो वो पेड़ जिंदा कैसे बचेगा, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो हम लोग अगर उस तरीके के प्लांट में जिसका लीव्स कम है, उसमें अगर हम लोग ये बैक्टीरिया का घोल बना के अगर हम लोग स्प्रे कर दें, ठीक है, तो लीफ के ऊपर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो कैटरपिलर ने वो लीफ खाया, लीफ के साथ बैक्टीरिया को भी खा लिया। ये बैक्टीरिया ऐसा है कि जैसे ये बैक्टीरिया कैटरपिलर के गट में पहुंचेगा, कैटरपिलर के एलिमेंट्री कैनल में पहुंचेगा, एलिमेंट्री कैनल में पहुंच के, सपोज ये कैटरपिलर का एलिमेंट्री कैनल है, ये माउथ है और इस तरफ एनास है, ठीक है, और ये है माउथ। तो जैसे ही एलिमेंट्री कैनल में पहुंचेगा, ये बैक्टीरिया एलिमेंट्री कैनल के अंदर रिलीज करना छोड़ेगा कुछ केमिकल्स, जिसको हम लोग एंडोटॉक्सिन बुलाते हैं। तो ये बैक्टीरिया कैटरपिलर के गट में पहुंच के छोड़ेगा एंडोटॉक्सिन। वो एंडोटॉक्सिन क्या करेगा, ये जो गट का जो भी सेल्स होता है, एब्जॉर्प्टिव सेल, सिक्रेटिव सेल, ये सबको मार देता है। विली जो एब्जॉर्प्शन करेगा गट से खाना को, सिक्रेटरी सेल्स जो खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, ये सब सेल को ये टॉक्सिन मार देता है, डैमेज कर देता है। तो जिसके वजह से ये कैटरपिलर खाना तो खाता है लेकिन वो हजम नहीं होता है, तो बॉडी डाइज ड्यू टू स्टार्वेशन। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ पे लिखा है, देखो, बीटी इज अ माइक्रोबियल बायोलॉजिकल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। ठीक है, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल में वो आता है, कैटरपिलर आता है जो लीफ खा के अपने आप को मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनाता है। बीटी इज अवेलेबल इन सेशेट्स एज ड्राइड स्पोर्स व्हिच आर मिक्स्ड विद वाटर। बाजार से लाके वाटर में मिक्स करके स्प्रेड ऑनटू द वल्नरेबल प्लांट्स सच एज ब्रेसिकास, फ्रूट ट्रीज। ये सबको ज्यादा डैमेज करता है। समझ में आया ना, कैटरपिलर या बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होगा वो सब, where these are eaten by insects larva, ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंसेक्ट का लार्वा खा लेता है, उनके ऊपर स्प्रे कर देंगे। लार्वा फ्रूट के पार्ट के साथ, वेजिटेबल के पार्ट के साथ, लीफ के पार्ट के साथ वो क्या कर लेगा, वो अपने अंदर ये बैक्टीरिया को भी खा लेगा। बैक्टीरिया उसके गट में जाके गट का सारा सेल डैमेज कर देगा और कैटरपिलर खा नहीं पाएगा, स्टार्वेशन से मर जाएगा, वो एडल्ट भी नहीं बनेगा। In the gut of the larva, BT releases an endotoxin which destroys the gut lining cells. ठीक है, gut lining cells को destroy कर देगा, absorptive secretory. Larva dies due to starvation. उसी तरीके का एक और एग्जाम्पल, ट्राइकोडर्मा, a free living soil borne fungi. ठीक है, ये पूरा सॉइल में रहने वाला फंजाई है, प्रोवाइड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस। ठीक है, प्लांट डिजीजेस से बायोलॉजिकल कंट्रोल ये देता है। कैसे? एज इट लिव्स इन द रूट इकोसिस्टम, जो प्लांट का रूट सॉइल का जिस लेवल तक धसा हुआ रहता है, उसी रूट के इकोसिस्टम में, उसी सॉइल में ये रहता है। एंड आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेन। अगर कोई इंसेक्ट है जो सॉइल को बोर करके अंदर घुस के जाके रूट में चला जाएगा और रूट को इन्फेक्ट करेगा प्लांट का, उस रूट के आसपास का जो सॉइल है उसमें ये फंजाई प्रेजेंट है। जैसे ही इंसेक्ट रूट के पास जाने का कोशिश करेगा, फंजाई क्या करेगा, उस इंसेक्ट को मार देगा। तो अगर हम लोग प्लांट का रूट का जो सॉइल होता है उसमें अगर ये फंजाई को अगर हम लोग ऐड कर दें, तो उस रूट तक अगर कोई पैरासाइट जाना चाह रहा है, जाके प्लांट को डैमेज करना चाह रहा है, उस पैरासाइट को ये फंजाई मार देगा। ठीक है, तो पैरासाइट जाके प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, डिजीज से हम लोग बचा रहे हैं कि नहीं प्लांट्स को। नोट्स बना। तो यहाँ पे एग्जांपल्स कंटिन्यूएशन में है बायो कंट्रोल एजेंट का एग्जांपल्स। तो बेकुलो वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो उन्हीं इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करता है या उन्हीं इंसेक्ट्स को अटैक करके मार देता है जो हमारे पेस्ट है। देयर आर वायरस विच आर स्पीशीज स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे कि कोई एफिड है जो हमारा क्रॉप को डैमेज करेगा, हम लोग उस एफिड का स्पीशीज को जानेंगे एंड उसका स्पेसिफिक क्या वायरस है जो इसको मार सकता है, उसके बारे में भी नॉलेज करेंगे। फिर हम लोग उस वायरस का स्प्रेइंग करेंगे हमारे फील्ड में, वो वायरस उस इंसेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो उसके बॉडी में जाएगा, जाके उस इंसेक्ट को मार देगा जो हमारा पेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई केमिकल का यूज नहीं कर रहे जिससे हमारे क्रॉप को कोई डैमेज होगा, हम लोग एक वायरस का यूज कर रहे हैं। So baculovirus are pathogens that attacks insects. Most common used biocontrol virus belongs to the genus. Question ये काफी आता है एंट्रेंसेस में। Nucleopolyhedrovirus (NPV). They are species specific. ठीक है, ये वायरस स्पीशीज स्पेसिफिक है, जो पेस्ट है उसका स्पेसिफिक होगा and does not harms the other plant, mammals, birds और even other insects.
ठीक है, क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, इसलिए ये दूसरे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नंबर 6। इसके ऊपर बोर्ड में भी काफी क्वेश्चन आता है, एंट्रेंसेस में भी, बायोपेस्टिसाइड्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स अप्लाइड टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का यूज, यहाँ पे हम लोग क्या ऑर्गेनिज्म का यूज के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई इज अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो क्या कर सकता है, पेस्ट को मार सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने वायरस के बारे में बात किया। एज वेल एज कुछ ऐसा इंसेक्ट है जो अनवांटेड प्लांट्स को उस फील्ड से रिमूव करेगा, जिसको हम लोग वीड बुलाते हैं। वीड को रिमूव करने के लिए हम लोग वीडिसाइड्स मारते हैं, केमिकल। उस वीड को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, तो उस वीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ इंसेक्ट्स का मदद ले सकते हैं जो उस वीड को खा लेगा। एंड पेस्ट को मारने के लिए हम लोग एक फंजाई का यूज करेंगे जो पेस्ट को मार देगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिजम्स अप्लाइड टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट और द अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स, अनवांटेड प्लांट वीड्स। 2 बेसिक टाइप बायोपेस्टिसाइड का, 2 बेसिक टाइप है, जिसका पहला है बायोहर्बिसाइड। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, हार्बिसाइड, ये हर्ब को मारता है। ठीक है, सुसाइड से साइड आया, किलिंग, साइड्स माने किलिंग, तो बायो माने बायोलॉजिकल मेजर, हर्बी हर्ब, अनवांटेड वीड, अनवांटेड प्लांट्स, साइड्स मार देगा। It involves the biological control of weeds by some living organism. Example, insect predator. हम लोग इंसेक्ट के मदद से उस वीड को हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज एक फंजाई के मदद से भी हम लोग उस वीड को मार सकते हैं। ठीक है, तो फंजाई क्या है वो मैं लिखूंगा इसको रब करके। अभी हम लोग पहला इंसेक्ट जिसके मदद से हम लोग वीड को मार सकते हैं, कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। उपुन्शिया वीड को ये खा लेता है, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिकली पियर कैक्टस। ठीक है, इस प्लांट को ये इंसेक्ट खा लेता है, तो ये इंसेक्ट हम लोग फील्ड में छोड़ के वीड्स का ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्राइसोलिना बीटल्स, हाइपरनिकम परफोरेटम, कलमथ वीड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलमथ वीड। इस वीड को ये वाला जो इंसेक्ट प्रीडेटर है ये खा लेता है। अब हम लोग यहाँ पे जिसके एग्जाम्पल, पहला इंसेक्ट प्रीडेटर दैट कंट्रोल्स वीड्स लिख दिया है, इसको सिर्फ मिटा के मैं अभी बी फंगल प्रीडेटर जो प्लांट के ऊपर एक्ट करके प्लांट को मार सकता है, वीड को मार सकता है, वो हम लोग अभी लिखेंगे। ठीक है, ऊपर का रहेगा, मैं सिर्फ ये इंसेक्ट प्रीडेटर ए, अभी बी हम लोग फंगल प्रीडेटर लिखेंगे। तो यहाँ पे वही जो हम लोगों ने बायो हर्बिसाइड यूज किया था, तो वो बायो हर्बिसाइड्स के अंदर में हम लोग हर्ब्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो वीड को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अब वीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फंगस, फंगल माइको, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, फंगल स्पोर यूज्ड एज हर्बिसाइड। तो जैसे कि फंगस पाइथोप्थोरा पेल्मीवोरा, ये जो फंगस है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइन, इसका हम लोग यूज करते हैं टू एलिमिनेट मिल्क वीड वाइन्स फ्रॉम साइट्रस ऑर्किड्स। कोमला बागान, कोमला बागान से, कोमला बागान में ये भी उठ जाएगा, लेबू बागान में ये भी उठ जाएगा। तो लेबू इज लेमन। ठीक है, तो वहां से इस ये प्लांट को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इस फंगस का अगर यूज करेंगे तो इस वीड को वो एलिमिनेट कर देगा, डैमेज कर देगा। सिमिलरली फंगस कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोरियोडिस, ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिगो। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं नॉर्दर्न जॉइंट बैच वीड को एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम राइस फील्ड्स। फंगस सेर्कोस्पोरा रोडमनी यूज टू एलिमिनेट वाटर हाइसिन, पानी मेटेका, पानी मेटेका बोलते हैं, हाँ पानी मेटेका देखा होगा, वो पोंड में ऐसे पूरा ग्रीन 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 ऐसा करके आ जाता है, वो वाटर हाइसिन को एलिमिनेट करता है ये वाला फंगस। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टाइप 2 ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। टाइप 2 ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स, टाइप 1 था बायो हर्बिसाइड, बायोपेस्टिसाइड्स का टाइप 1 था बायो हर्बिसाइड, टाइप 2 है बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये जो बायो इंसेक्टिसाइड्स है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसेक्ट्स का मदद लेंगे इंसेक्ट को मारने के लिए। ठीक है, वो जो लेडी बर्ड जो एग्जांपल था, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, अच्छा, दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर प्रोडक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनका कोई सिक्रेशन विच आर एबल टू, या उनका कोई सिक्रेशन याद रखना, विच आर एबल टू किल और रिपेल स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, जो हमारे क्रॉप को डैमेज करेगा, उस इंसेक्ट को किल मार सकता है या फिर रिपेल कर सकता है। अब बायो इंसेक्टिसाइड्स में क्या क्या एग्जांपल्स हम लोग को मिलेगा उस पे चलते हैं। सो यहाँ एग्जांपल्स ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स लिख दिया है, डेफिनेशन उसके पहले लिखा था। तो बायो इंसेक्टिसाइड्स में एकदम सब स्मार्ट टेक्निक है जिसका यूज हो रहा है। पहला जो है वो है स्टेरिलाइजेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेराइल मेल्स को हम लोग फील्ड में छोड़ देते हैं और वो स्टेराइल मेल्स फील्ड में जाके फीमेल के साथ मेटिंग करता है, ठीक है ना। तो उस मेटिंग से क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन जब नहीं आएगा तो जो पेरेंट जनरेशन है वो अपना लाइफ स्पैन जी के मर जाएगा। तो फील्ड में क्या होगा, जो पेस्ट है, जो एफिड है, उसका काउंट क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, है ना, क्योंकि उसका नेक्स्ट जनरेशन आया ही नहीं। जो जनरेशन है वो अपना लाइफ स्पैन जी के मर जाएगा, ठीक है। सच एज स्क्रू वर्म, साइंटिफिक नाम ये। इंसेक्ट हार्मोन और फेरोमोन, ये और भी स्मार्ट टेक्निक है। इंसेक्ट हार्मोन और फेरोमोन, इसलिए मैंने सिक्रेशन बोला था, एनिमल और इट्स सिक्रेशन। अच्छा, इंसेक्ट और इट्स सिक्रेशन। यहाँ पे देखो, पहला जो है वो है फेरोमोन ट्रैप्स। These traps attract males, they become unavailable for reproduction. एक बॉक्स के जैसा बनाते हैं, उसमें फीमेल फेरोमोन सिक्रेट करती है टू अट्रैक्ट मेल फॉर मेटिंग। तो हम लोग उस फेरोमोन को बाहर प्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली और एक ट्रैप में उसको पूरा पोत के रख देते हैं, स्प्रे करके रख देते हैं। मेल सारा क्या हो जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि इतना केमिकल छोड़ा है, इतना केमिकल छोड़ा है तो उससे स्मेल बहुत तगड़ा आ रहा होगा। तो सारा मेल वहां रश करके उसके अंदर फंस जाएगा। मेल्स विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल अपना लाइफ स्पैन जी के मर जाएगा। वो अपना लाइफ स्पैन में क्रॉप को जितना डैमेज करना करेगा, उसके बाद वो मर गया तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा। कंफ्यूजन टेक्निक, पेपर स्ट्रिप्स विथ फेरोमोन्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द फील्ड, सो मेल्स कैन नो लॉन्गर लोकेट फीमेल्स। फीमेल भी फेरोमोन छोड़ रहा है फॉर मेटिंग। हम लोगों ने फील्ड में अलग अलग जगह में फेरोमोन, पेपर में फेरोमोन छिड़क के पेपर फेंक के रख दिया। तो मेल कंफ्यूज हो जाएगा, इधर से भी स्मेल आ रहा है, इधर से भी स्मेल आ रहा है, तो वो फीमेल को लोकेट ही नहीं कर पाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, सेकंड जनरेशन कहाँ से आएगा। मोल्टिंग हार्मोन, ठीक है, इक्डाइसन इज अ मोल्टिंग हार्मोन व्हिच हेल्प्स देम टू डू इक्डाइसिस और मोल्टिंग, जिसके वजह से वो लोग मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनता है। आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, हमको पता है इक्डाइसिस या मोल्टिंग इक्डाइसन करवाता है। तो अगर मैं कोई भी सोर्स इक्डाइसन को लाके बुले में लीफ में स्प्रे करके रख दिया, वो कैटरपिलर या लार्वा जो है उसने लीफ खा लिया, लीफ खाने की वजह से ये हार्मोन उसके बॉडी में चला गया, जाके ये हार्मोन उसके बॉडी में जाके उसका मेटामॉर्फोसिस को फास्ट कर दिया। वो 3-4 मोल्टिंग करके एडल्ट बनता, वो एक ही मोल्टिंग में अभी एडल्ट बन जाएगा। तो एक ही मोल्टिंग में एडल्ट हो जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जुवेनाइल हार्मोन दैट इज इक्डाइसन, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन से हम लोगों ने मेटामॉर्फोसिस को फास्ट कर दिया, है ना, मेटामॉर्फोसिस को फास्ट कर दिया, which will cause an early death, ठीक है। इसका नोट बना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स का 2 हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इससे पहले जो 2 था उस 2 में हम लोगों ने स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड फेरोमोन का यूज वो पढ़ा है। दिस इज नंबर 3rd एग्जाम्पल ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड, इसलिए मैंने लिखा हुआ रखा। 3rd एग्जाम्पल नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। तो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स obtained from living organism, ठीक है। फ्लावर वगैरह से, प्लांट से हम लोग कुछ केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, करके अगर उन केमिकल्स को हम लोग पेस्ट के ऊपर मार दे, पेस्ट मर जाएगा। जैसे कि रोटिनोन, ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को ये मार देता है। लेकिन ये हम लोग देखो एक लेगुमिनस फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जिसका नाम है डेरिस इलिप्टिका, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट तो पता ही होगा तुम लोग को, चढ़ता है ऐसे। निकोटिन, टोबैको, निकोटिन स्प्रे से भी इंसेक्ट मरता है। एजाडिरेक्टिन, नीम लीफ से ये केमिकल मिलता है, उससे भी मरेगा। पायरेथ्रूम एंड साइनेरिन, ये मिलता है डेजी प्लांट से, डेजी फ्लावर देखा होगा उससे। थ्रियोसाइड केमिकल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस थुरिंजिएंसिस द बैक्टीरिया, ठीक है। इन सब से हम लोग ये सब ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये सब का डिस्कशन कि क्या क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड केमिकल्स, वो सब हमारा खत्म होता है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशनल पॉइंट दिया है, स्मूदर क्रॉप्स विच डू नॉट अलाउ वीट टू ग्रो नियर बाई, ठीक है, सेमीकोलन बाय सम ऑफ देयर ओन सिक्रेशन। ऐसा प्लांट्स है जो कुछ ऐसा केमिकल सिक्रेट करता है और वो केमिकल्स अपने आसपास वीट का ग्रो होने नहीं देता है, अननेसेसरी प्लांट को ग्रो होने नहीं देता है। एग्जाम्पल बार्ली, राइस, सोरगुम, सनफ्लावर, सोयाबीन, मेरीगोल्ड एक्सेट्रा। नोट बनाने का। सो यहाँ पे देखो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है या फिर एंट्रेंसेस में मोटिव पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स के लिए किया जाता है, या क्या क्या मेथड से इसके अंदर, ऐसे करके पूछा जाता है। तो इसलिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, वही जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में सेवरल साइंस का एप्लीकेशन करना इन ऑर्डर टू नॉट लेट एनी पेस्ट टू डैमेज आवर क्रॉप्स। पेस्ट से जो हमारा क्रॉप डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए
बायोलॉजिकल साइंसेस का यूज करना, बायोलॉजिकल आइडियाज का यूज करना करके पेस्ट्स को मैनेज करना, उसको कंट्रोल में रखना, ज्यादा डैमेज नहीं करने देना। ठीक है, तो देखो दिस इज डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर बीइंग कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल आईपीएम प्रोग्राम और व्हेन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। माने अगर ऐसा कोई एरिया है जो ऑलरेडी सॉइल पोल्यूशन है, जो ऑलरेडी वाटर पोल्यूशन है, वहां पे तो तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स ये सब का परमिशन ही तुमको नहीं मिलेगा उस एरिया में यूज करने के लिए, क्योंकि वहां का सॉइल ऑलरेडी डैमेज्ड है। तब तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मदद लेना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, जो पेस्ट तुम्हारे फील्ड को अटैक किया है उस पेस्ट का प्रीडेटर को पालना, उस पेस्ट के प्रीडेटर को एक कंजर्व वे में उसको ग्रो करवाना और फिर उनको लाके तुम्हारे फील्ड्स में छोड़ देना। उनको तो तुम्हारा जो पेस्ट है वो तो इन प्रीडेटर्स का खाना है, क्या करेगा वो प्रीडेटर्स निकल के जाएगा, ठीक से खाना खाएगा तुम्हारे फील्ड्स में, वापस अब फेरोमोन से अट्रैक्ट करके उसको घर में हम लोग बुला लेंगे, वापस उस डिवाइस में बुला लेंगे जिसमें वो रहते हैं। जस्ट लाइक एपिकल्चर में जैसे हम लोगों ने आर्टिफिशियल बीहाइव के बारे में बात किया, लाइक दैट। तो आर्टिफिशियली प्रीडेटर्स को पालना, प्रीडेटर्स का पॉपुलेशन को बढ़ाना जो पेस्ट को खाता है। Also called as sustainable pest management. Integrated pest management is also called as sustainable pest management. क्यों? As it is ideally the most effective, economical, safe definition है sustainable, social, ठीक है, physical, chemical and biological methods to limit the harmful effects of crop. definition है, तुम लोग कर लेना। Agriculture loss due to pest is about 30%. ठीक है, number of measures जो एंट्रेंसेस में कभी कभी पूछता है अंडर IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या क्या है। यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज, ठीक है, कुछ ऐसा ही प्लांट उगाओ जो अपने में वो पेस्ट ग्रो करने नहीं देता है। कैसे ये कर सकते हैं, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग ग्रो करवा सकते हैं या बना सकते हैं, ऐसा प्लांट जिसमें इनबिल्ट पेस्ट रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी है। ये कैसे होगा, ये बायोटेक्नोलॉजी में पता चलेगा। प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस जो उन पेस्ट को खाएगा, पैरासाइट्स जो पेस्ट को मार देगा, लेट प्लांटिंग जिस टाइम पे पेस्ट का अंडा हैच होता है, ठीक है, उस टाइम पे प्लांटेशन नहीं करने का। वो लोग का अंडा हैच होने के बाद उनको खाना चाहिए, तो खाना खाने के लिए पेस्ट आके एग्रीकल्चर फील्ड को अटैक करेगा, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर करो ही मत जब उन लोग का एग्स हैच होगा। ऑफ सीजन में करो जब उन लोग का एग्स हैच नहीं होता है। एट्रैक्टेंट्स में मेल को अट्रैक्ट करके बंदी बना लेते हैं, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आने देते, दैट वन। रिपेलेंट्स कुछ ऐसा केमिकल जो अभी प्लांट से हम लोग एक्वायर किए हैं, जो स्प्रे करने से इंसेक्ट्स को रिपेलेंट वो मार देगा तो इंसेक्ट वहाँ से भाग जाएगा, या फिर उसको इरिटेटेड फील होगा वो वहाँ से भाग जाएगा, क्रॉप से भाग जाएगा, वो हम लोग कोई फ्लावर वगैरह से अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का वीडियो को मैं रोकता हूँ। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर्स। ये बायो फर्टिलाइजर सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट को ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका एक छोटा टॉपिक है और वीडियो भी छोटा ही बनेगा, 15-20 मिनट का बनेगा, तो उसमें 15 मिनट का ही बनेगा शायद, तो उसमें वो पार्ट कर देंगे। आज यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लेना। बाय बाय।